Bismillahirrahmanirrahim. I'm very thankful to all of you for sparing your time out of the busy schedule and come attend this session. Thanks to Searle as well for arranging the CME. Thanks to DOCTORSCON from Dr. Altaf Chima as well. He has been very instrumental in arranging all these CMEs. So today what we are going to talk about is with the Ramadan around the corner, diabetes and Ramadan. What can be done, what should be done for our patients with diabetes. So we all know the diabetes is rampant across the globe. Currently we have about 537 million adults living with diabetes, and 3 in 4 adults with diabetes live in low and middle income countries. There used to be a time when we used to say that diabetes is a disease of rich, elite and affluent society, but that's not true anymore, because healthy food is expensive and junk food and unhealthy food is relatively cheaper. So that may be a reason, but we are seeing much more diabetes in low and middle socioeconomic status, lack of facilities in terms of exercise, in terms of parking areas. That's another factor. More workload, more stress in low socioeconomic strata. That could be another factor which is the cause behind this increase of this disease in lower and middle socioeconomic strata. So if you look at the financial burden of how much money each country is spending on diabetes in term compared with the diabetic population, I would just like to highlight here on this curve. Look at US. Yellow is the curve, is a line which shows diabetic patients, and these are the number of millions which are being spent on this disease. So that may be a reason outcome of this disease is much better in developed world compared with countries like India and Pakistan. If you look at this, these are number of patients with diabetes, and these are the number of millions being spent. So what we really need to do is in this part of the world is, like they say, bury the hatchet, be friendly with each other, cut our spending on defense and other things, and spend more money on public welfare, spend more money on health care, so spend more money on education, spend more money on improving the people's quality of life, and that will help the disease, that will help all these comorbidities associated with the general health of the population as well. Now patients, coming to our topic, the Ramadan, patients with type 1 diabetes, we all know that type 1 usually falls in the category which is a high risk category for fasting. But if you look at the data, this data is from the CREED study which was done in 3 different continents across the globe: Asia, Europe and Africa. In this study what we found out is patients with type 1 diabetes, about 42% of these patients, they do fast some for a certain number of days, and patients with diabetes with type 2 diabetes, about 79% of these patients, they do fast also. So yes, we can categorize our patients with diabetes in high risk, low risk and medium risk population, but putting them in high risk is not going to stop them from fasting if their religious belief, based on the religious belief. And I think there's more to it. It's a religious belief, and plus everyone is fasting. It's such a festive month, and it becomes more of a cultural thing also. It becomes more of a festive thing also, along with the religious thing. So that's why many a times I see patients with coronary artery disease who are diabetics, who have some degree of kidney disease as well. The diabetes is not very well controlled, but they still insist on having some number of days where they can fast. So as a physician, as healthcare provider, it's very important on our part to talk to our patient, tell them the risk associated with their condition, and then if they still insist, then instead of saying jao kar lo jo ab marzi karni hai maine mashwara de diya hai, then we need to
need to work in liaison, in collaboration with them, and see how can we minimize their risk of different complications during the fasting month. Because being in a high risk, yes, if they are on their own, they will have much higher risk of complications, and when we are working in liaison with them as a healthcare providers, we can decrease their problems, their complications, their risks associated with fasting during the month of Ramadan. And this is typical what we see in the month of Ramadan. Like I said, this is a festive month, it's a religious month also, and there's all kinds of foods are available. So another problem in this month is, since there's so much on the table for during those days, for most of the patients, I would say that poor or rich, this is such a blessed month that every person gets more food than what they need. So that's why the controlling of the diabetes, and on one end we are worrying about hypoglycemia in these patients for prolonged fasting, and on other spectrum is at iftari time, when all kinds of foods are available on the table, then there's a risk for significant hyperglycemia as well in these patients. So all these things, they need to be discussed, they need to be talked with these patients. Let me skip a couple of slides because I would like to leave some time for the expert's opinion as well, and for question answer as well. So during Ramadan, if you look at the same study, Khurshid study, what I was mentioning earlier, hypoglycemia was reported in 8.8% of patients with type 2 diabetes, compared with 5% before Ramadan. So the risk of hypoglycemia definitely goes up, but if we give proper instructions to our patients, tell them how to fast and how to adjust their dose based on how much they eat at Sahri time, that definitely can bring their risk much closer to the pre-Ramadan time, if not completely at that number. So pre-Ramadan education, we have few studies which were conducted in Pakistan as well to see what is the benefit of educating our patients during the pre-Ramadan season. This is the time. I tell you my personal practice. Every patient who comes to me, I ask them, कि रमज़ान का क्या प्रोग्राम है. The reason I ask them about this, because I know if I don't ask them, they may not bring it up, and they will go back and start fasting with the same dose of medications they are taking. And most of my patients usually come back to me within after 3 months, 2 months, 6 months, something like this. So that's why I know that 80% of those patients I will not see before Ramadan. Sometimes it creates an awkward situation for me as well, because I'm asking a patient कि हाँ जी रमज़ान का महीना आ रहा है, क्या प्रोग्राम है, and the person also is embarrassed sitting in front of me, see डॉक्टर साहब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मेरे लिए रोज़ा रखना मुश्किल है. And then I explain them कि I'm not putting you at the spot. My intention is just to ask you, if you want to if you plan to fast, how can I facilitate you? And I understand there are a lot of patients who cannot fast because of their stamina, because of their diseases, but I just want to make sure that if you plan to fast, at least I give you some instructions on that. So that kind of awkward moment which comes up, I tend to take care of this way, but this is my routine for past many years. This month, 1 month before Ramadan, everyone who comes to me, I ask them this question. And to my surprise, I would tell you that about 5 to 10% of the patients during this pre-Ramadan visit, which is their random regular visit, they bring up this Ramadan issue. But when I bring up this issue, then about 80% of those patients, they say, some of them say, डॉक्टर साहब रोज़ा तो हमने कभी नहीं छोड़ा, इस दफ़ा भी रखना है. And some they say, डॉक्टर साहब रोज़े सारे तो नहीं रखे जाते, लेकिन ये है कि कुछ रखते हैं, कुछ बंद कर देते हैं. Then I write them a separate prescription कि जिस दिन रोज़ा रखना है उस दिन के लिए ये prescription है, उसके अलावा बाकी दिनों के लिए ये है. So that's why as healthcare providers,
providers, you do need to address this, to talk to the patients, and because, like I said, this topic does not come up spontaneously. So that needs to be brought up during this consultation 4 to 6 weeks before, starting from 4 to 6 weeks before Ramadan. So this was, I was showing the study. In this study, what they found out is the main areas of diabetes education which were done in this study was risk quantification, blood glucose monitoring, fluids and dietary advice, physical activity, medication adjustment, when to break, and recognition of hypoglycemia and hyperglycemia symptoms. So what was found out, the patients who were given this pre-Ramadan education during this study, which was done in Pakistan, the outcome in terms of complications was much better compared with those patients who did not get that formal education for Ramadan. And this has to be done every year, because patients do not remember what they did, how medications were changed. So this has to be re-emphasized, this has to be refreshed in patients' memory and in patients' prescriptions every year. These are the different risk categories. This is a very busy slide, I'm sorry, I will not take you in the detail of this slide, but category 1 is high risk. This categorization was done by IDF and dark risk categorization in collaboration with Amina as well. So in category 1, these are very high risk patients. These are the patients with type 1 diabetes, with the history of decay. These are the patients who have significant history of hypoglycemia, unawareness. These are the patients with pregnancy and pre-existing diabetes. So all patients with the CKD as well, with chronic dialysis as well, patients with the advanced macrovascular complications, significant ischemic heart disease as well. So these are category 1. These are very high risk patients, and in these patients, usually it's better if these patients don't fast, but like I said, you cannot you cannot put too much pressure on a patient if he says, okay, no matter what, I'm going to do, I'm going to fast, and but in that case, then you work with that patient to minimize their risk, and we'll come to that. Category 2 is high risk. 1 is very high risk, 2 is high risk. These are most of your type 2 diabetic patients who are uncontrolled regarding their diabetes, patients CKD stage 3 as well. In early category 1, it was stage 4 and stage 5 and dialysis patients with ischemic heart disease. And then comes the third group of patients. Third group of patients are those who are type 2 diabetic. They are recently diagnosed, they are taking 1 medication, maybe 2 medications, and their glucose is in decent control. So these patients, they are low, they are, I would say, relatively low risk category. So these are patients who can fast easily without any complications and any risk. So it's important to tell your patients that you fall in category 1 and your risk for complications is very high, or you fall in category 3, the risk is not very high, so you can decide what you want to do, and category 2 is somewhere in the middle. Another important thing for these patients, for us to highlight to these patients, is the frequent testing on these patients, because there are certain myths in the community. If you check your blood glucose during fast, your fast may break and it may not rise. But we need to educate by testing the blood. Nothing happens to the fast, and if routinely you check your blood once or twice, but during the month of Ramadan you need to check it more frequently. It's good practice to check it before Sari time, check it somewhere around the midday time. There are 6-7 different times they can be checked. So usually if you have to go easy way, before Sari, around midday time, and somewhere in the evening. So at least these 3 readings should be done, and on certain days they can alternate these 3 readings with other times as well. So instead of boring you just with a theoretical discussion, let's go on different case presentations and see what can be done in these cases. So this is 38-year-old patient, type 2 diabetic for 3 years, HbA1c is 7%. Patient is taking sitagliptin, 50 milligram twice a day, and metformin 500 milligrams 3 times a day. No micro or macrovascular complications. So if I ask you the risk stratification on this patient in terms of fasting, where does this patient falls? High, medium, or low? Where this patient will be? This patient obviously seems like there's not a whole lot aside from just simple diabetes, 1 or 2 medications. So this is your low risk category patient, what we call well controlled with any 1 or 2 of these following medications.
So how will you adjust his medications? This patient was on sitagliptin twice a day, on metformin 3 times a day. क्या करेंगे जी? इसने अगर फास्टिंग करनी है तो anyone के किस तरह से एडजस्ट करें? माइक है आपके पास? किसी के पास माइक ज़रा दे दे ऑडियंस को, बिना माइक ले जाए। चीमा साहब को दे दें माइक जी, चीमा साहब को दे दें माइक। हाँ जी, उसको सुबह शाम जो डोज ले रहे हैं वो जारी रखेंगे, लंच के बाद? लंच की आप कहते हैं बंद कर देंगे जी। एनी डिफरेंट थॉट्स? हाँ जी, अच्छा ठीक है जी, मुझे पॉइंट आपका, वो कह रहे हैं जी लंच वाली तो बंद कर ही देंगे, अगर सहरी के वक्त भी एक कम कर दें तो क्या हर्ज है? आई थिंक बहुत, हाँ ब्रेकफास्ट में वो तो 2 ही दे रहे हैं ना। अच्छा 2 मेटफॉर्मिन की 2 दे दें, आप ये कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो मतलब नहीं, मुझे आप ये चलें क्लियर कर दें, मैं अच्छा जी अच्छा, आप कह रही हैं कि वो लंच वाली आप क्लब कर दें अफ्तारी टाइम के साथ। आई मीन देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर हियर, आई वुड टेल यू दैट इट कैन बी डन मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन हाउ द रीडिंग ऑफ योर पेशेंट इज़, कि दिस वाज द मेडिकेशंस ऑफ योर पेशेंट, सो व्हाट कैन बी डन कि लाइक आपने कहा कि एक आपका पॉइंट है कि सहरी के वक्त आप कर दें सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन, और रात को आप 1000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन कर सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन ग्लूकोज का कंट्रोल क्या है, एंड प्लस डिपेंडिंग ऑन पेशेंट विल मॉनिटर द ब्लड ग्लूकोज आल्सो। वो जो चीमा साहब ने भी अर्लियर बात कही है वो इट्स, हाँ वो बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं हम कि पेशेंट इज रिलेटिवली इन डिसेंट कंट्रोल, ईदर वे दैट कैन बी डन, बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि जो भी आपने चेंज की है ना, दैट वाज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, दैट नीड्स टू बी मॉनिटर्ड ऑन दैट पेशेंट। ये कि ऐसा नहीं है कि आपने चेंज कर दी और उससे कहा हाँ ठीक है जाओ, उससे जी अपनी ग्लूकोज मॉनिटर करें, गिव हिम कपल ऑफ ऑप्शंस। अगर अफ्तारी के बाद लेट्स सपोज आप वाला हम कम्बिनेशन ले लेते हैं, अफ्तारी के बाद आपकी डिप करती है या सहरी से पहले लोअर एंड पे आती है, तो मे बी यू नीड ओनली 1 मेटफॉर्मिन एट नाइट इंस्टेड ऑफ 2 मेटफॉर्मिन्स। सो change in dose and then the monitoring is of utmost importance. ये हमने डिस्कस कर लिया, तो both we could have gone both way. तो कमिंग टू द मेटफॉर्मिन पार्ट, बाज़ का वो चीमा साहब वाली अप्रोच भी इसलिए अच्छी होती है कि सारा दिन का खाली पेट होता है, अब कहते हैं कि रात को क्या 1000 मिलीग्राम मेटफॉर्मिन देनी है, पेशेंट हैज सेंसिटिव स्टमक, सो फॉर डिफरेंट पेशेंट्स योर डिफरेंट कम्बिनेशन विल गो। यू से कि ठीक है इकट्ठी 1 ग्राम दूँ सारे दिन के एम्प्टी स्टमक के बाद, खाना भी उसने लेना, 1 ग्राम मेटफॉर्मिन भी ले ले, साहब से नौजिया भी हो जाएगा, सुबह की रोज़े से भी जाए, सहरी के वक्त के जी मैं तो अभी तक नौशियस हूँ, मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा। सो डिपेंडिंग ऑन कि उसका स्टमक कितना तगड़ा है तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो यूजुअली वी ट्राई टू डिक्रीज द डोज ऑफ मेटफॉर्मिन ड्यूरिंग रमदान, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है तो DPP-4 यूजुअली डू नॉट रिक्वायर मच मॉडिफिकेशन, उससे हमने छेड़ा भी नहीं, आप दोनों में से भी किसी ने उस पर नहीं कोई बात कही, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी केस। लेट्स गो टू द केस नंबर 2, 45-year-old patient, type 2 diabetic for 11 years, HbA1c is 8.6%, medications are empagliflozin with breakfast, glimepiride with breakfast in that patient. So patient takes both of these medications in the morning. She has neuropathy and retinopathy. अब यहाँ पे क्या करना है जी? Anyone माइक पास कर दें किसी और को ना, इस तरफ ले जाए माइक बेशक ना। Anyone from there? कोई any input from there जी? कोई any volunteers, कोई पीछे से कोई इसमें इनपुट देना चाहे? हाँ। वरना चीमा साहब आप पे तो बाद माइक आएगा ही बाद में ना। ठीक है, 4 से 3 मिलीग्राम कर दें। अच्छा जी, तो उसमें आपका सजेशन ये है कि ग्लाइमेप्राइड को हम थोड़ा सा कम कर दें और एम्पेग्लिफ्लोजन को बेशक हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं। एक दूसरा मैं अल्टरनेटिव भी सजेशन दे देता हूँ कि ये भी हो सकता है कि पेशेंट ने अगर लेट्स सपोज कि वो आउटडोर में उसका काम है, उसको समर टाइम है, डिहाइड्रेशन का भी रिस्क है, तो एम्पेग्लिफ्लोजन को हम अफ्तारी के वक्त भी स्विच कर सकते हैं इस पेशेंट में, और ग्लाइमेप्राइड की डोज को दैट गोज़ विदाउट सेइंग, तो ये कर सकते हैं। हाँ जी डॉक्टर कमर, मेरे ख्याल में अभी मुश्किल सा सवाल ना पूछ लेना यार। सर आई थिंक कि जो ग्लिमिप्राइड है सर इसकी डोज शाम को शिफ्ट कर रही है, अच्छा मॉडरेट रिस्क है इसके अंदर, तो जो एम्पाग्लिफ्लोजन हम डे में इसको इसलिए नहीं देते कि डिहाइड्रेशन होने के चांस है, वी कैन शिफ्ट
at night. ठीक है जी। डॉक्टर कमर का पॉइंट आया जी कि आप इन्हें दोनों को शाम को ले जाएं और ग्लाइमेप्राइड की डोज को कम करना है, इतना रखना है? सर अगर क्योंकि HbA1c 8.6 है और हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उनका पॉइंट है जी कि पेशेंट की शुगर ही बड़ी अनकंट्रोल्ड है, तो रोज़ों में अगर वो कहते हैं ना अल्लाह की तरफ से कंट्रोल में आ जाए तो कोई हर्ज ही क्या है इसमें ना। तो मतलब ऑब्वियसली ये आपने करेक्टली आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ योर पेशेंट इन कैटेगरी 2, जो कि मतलब हाई रिस्क, मॉडरेट टू हाई रिस्क पेशेंट है कि कॉम्प्लिकेशंस भी हुई हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक भी है और फॉर लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ भी है इस पेशेंट को ना। तो इसकी मतलब मेडिकेशंस, देयर आर मेनी वेज टू एडजस्ट इट, कि ये इसकी मेडिकेशन थी। तो उसमें जो बेहतर जो सोल्यूशन जो मुझे लगा वो ये है कि मैंने भी आई थॉट ऑफ द सेम लाइंस कि चूँकि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है 8.6, अगर यही 7% होता ना तो फिर मैं उसको कहता है ग्लाइमेप्राइड 2 मिलीग्राम कर दें आप ना, क्यों रिस्क लेना है। वो पहले ही कुछ 250 के आसपास उसकी शुगर रहती है, तो चलो अगर रोज़ों के बहाने 1 महीने में कंट्रोल हो जाए, लेकिन लेके आप शाम को आ जाएँ। लेकिन अगेन इट्स अ वेरी, देयर इज़ नो मैथमेटिकल इक्वेशन टू दिस। अगर इसमें जैसे आपने कहा चीमा साहब, उससे आप कम भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ग्लूकोज मॉनिटर करें, और अगर ज़्यादा रहती है तो गो टू 4 मिलीग्राम। लेकिन आई वुड हैव डन द सेम अप्रोच जो कि मतलब कमर ने भी इसमें जिक्र किया, तो आई वुड हैव डन दैट। तो ट्रेडिशनली सल्फोनाइल यूरिया को हम करते ही हैं कि 1 डे ले रहे हैं तो अफ्तारी के टाइम ले आएँ सैरी की बजाय, और डोज थोड़ी सी डिपेंडिंग ऑन के HbA1c क्या है उस पेशेंट की, अगर कंट्रोल में है तो कम कर दें, अगर अनकंट्रोल्ड है लाइक दिस सिनेरियो आई टोल्ड यू तो डोज वो भी रख सकते हैं। अगर ट्वाइस अ डे डोज ले रहा है तो उसमें अफ्तार वाली डोज बेशक आप सेम रखें, लेकिन बिन वेल कंट्रोल्ड आप इस बॉक्स पे आ जाएं। इन पेशेंट्स विद वेल कंट्रोल्ड ब्लड ग्लूकोज, अगर मैं उस तरफ जाऊँ तो इस बॉक्स को देख लेंगे, जहाँ वेल कंट्रोल्ड आ जाएगी वहाँ पे शुड बी रिड्यूस्ड, द सल्फोनाइल यूरिया डोज शुड बी रिड्यूस्ड। तो केस 3 पे आ जाए हम जी। This is 47-year-old male, type 2 diabetic for 12 years, HbA1c is 7.9%, patient is on pioglitazone 30 milligram with breakfast and pre-mixed insulin 70-30, 24 units in the morning and 20 units at night, and goes to his 8-hour job daily. वो काम भी करता है, वाकई जेनुअनली 8 घंटे के लिए जाके काम भी उसने भी करता है। तो इस पेशेंट को where would you put in terms of risk stratification? आप इसे हाई रिस्क में रखेंगे, मतलब कैटेगरी इस पेशेंट की 2 ही आप रखेंगे ऑब्वियसली, तो ये ठीक है, मतलब यू रिकग्नाइज वेरी वेल। और उसके बाद मेडिकेशंस को क्या करेंगे जी, ये इसकी मेडिकेशंस थी। एनीवन जी, जिन लोगों ने दे दिया फीड रिस्पॉन्स, उनके अलावा मुझे कोई दें तो आई वुड अप्रिशिएट दैट। हाँ जी, एनी वन फ्राम ये फ्रंट साइड से कोई, अगर फ्रंट सोफ़ा से कोई वॉलंटियर्स हों तो उन्हें दे दें, अगर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। अच्छा जी, चलें जी। चीमा साहब तो बाय डिफ़ॉल्ट हैं ही है ना, जब आई गो हेड। अब तक तो चीमा साहब ने भी इतनी CMEs अटेंड कर ली हैं कि ये भी मास्टर हो गए होंगे काफ़ी चीज़ों के। हाँ जी, उसकी जो मॉर्निंग डोज है इंसुलिन की, उसको कम कर देने और शाम की उसकी या तो यही जारी रखेंगे डिपेंडिंग ऑन द मॉनिटरिंग। और पायोग्लिटाजोन का क्या करेंगे आप? पायोग्लिटाजोन जारी रखेंगे। अच्छा जी, लेट्स सी कि मैंने क्या इसमें सोचा। हाँ, तो उसका मतलब पायोग्लिटाजोन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई पुट इन द इवनिंग टाइम बिकने का, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, पायोग्लिटाजोन का शॉर्ट एक्टिंग इफेक्ट नहीं है, ये क्योंकि न्यूक्लियर रिसेप्टर्स के जरिए काम करती है थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। पायोग्लिटाजोन का इफेक्ट आने में बॉडी में कितना टाइम लगता है? एनी वन, अगर एक पेशेंट को आज आपने पायोग्लिटाजोन शुरू करवाई है तो पायोग्लिटाजोन का इम्पैक्ट उसके सिस्टम में आने में कितना टाइम लगता है जी? 1 हफ्ता। एनी अदर टेकर्स? 1 हफ्ता आपने कहा जी। जी, क्योंकि ये मतलब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के जरिए मतलब करती है, तो आप कैलकुलेट करें, इसने सिंथेसिस करवानी है मैसेंजर RNA थ्रू DNA, यूजुअली वी से एनीवेयर बिटवीन 2 to 4 वीक्स। इसका 80% इफेक्ट 2 हफ्ते में आ जाता है, फुल इम्पैक्ट 4 वीक्स में। और विद द सेम टोकन जब आप इसे बंद भी करते हैं, इट्स इफेक्ट डज नॉट गो राइट अवे, तो उसका इम्पैक्ट भी ख़त्म होने में कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो पायोग्लिटाजोन तो आप किसी तरह भी रख सकते हैं सुबह शाम, लेकिन जो दूसरी बात आपने कही है कि मॉर्निंग इंसुलिन को कम कर दें, और अफ्तारी वाली जो आफ्टरनून मतलब अफ्तारी के वक्त इंसुलिन है उसे आप बढ़ा भी सकते हैं, उतनी भी रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन। अब इस पेशेंट में देखें इसकी HbA1c बड़ी अच्छी थी, तो दैट्स व्हाई आई टुक द लिबर्टी कि चलो अभी फॉरी लेट मी गो टू हिज
सॉरी नहीं अच्छी नहीं थी, 7.9%, ठीक है। तो उसमें मेरा ख्याल है कि इट विल मेक स्लाइड पे तो मैंने 20 यूनिट्स लिखी हुई है, लेकिन इट विल मेक सेंस कि आप अफ्तारी के वक्त बेशक 26 यूनिट के आसपास जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो दैट विल बी अ राइट अप्रोच इन दिस पेशेंट कि मॉर्निंग की इंसुलिन कम कर दें और आफ्टरनून वाली ज़्यादा कर दें जी। तो पाइक्लोडाज़ोन की डोज मॉडिफिकेशंस नहीं चाहिए होती ड्यूरिंग रमदान, हाँ, लेकिन उसके साथ जो बाकी चीज़ें हैं उनकी डेफिनेटली चाहिए। प्री मिक्सेस को किस तरह से करते हैं, अगर ट्वाइस डेली डोजेज़ है तो हम कहते हैं इधर नॉर्मल डोज़ ले ले या थोड़ी सी डोज़ आफ्टरनून में बढ़ा दे, लेकिन मॉर्निंग की जो डोज़ है वो बाई 50% जो सहरी की डोज़ है उसे कम कर दिया जाए। तो 3 टाइम जो डोजिंग होती है, जो MDI का स्केड्यूल होता है, उसमें ज़ाहिर है लंच वाली डोज स्किप कर देते हैं, थोड़ी सी बेजल को भी हम कम कर सकते हैं, लेकिन बोलस डोज कैन स्टे मोर और लेस द सेम इन दोज पेशेंट्स ना। अच्छा जी, इसी पेशेंट की हम बात कर लेते हैं। वो मैंने अर्लियर बात कही ना कि इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि आपने एक पेशेंट को देखा, आपने कहा हाँ जी कर लो, चलो जाओ 3 महीने बाद आराम से आना। उसे आपने थोड़ा सा लीवे देना पड़ेगा कि हाँ जी आप चेक करो, ये ऑप्शन है, ये हो सकता है, अगर हो जाता है जल्दी आ जाओ मेरे पास, या मुझे मैसेज कर दो, या जो भी आपका एक मेथड है पेशेंट्स के साथ कम्युनिकेट करने का, उस तरह से कर ले। लेट्स सपोज द सेम पेशेंट 12वें रोज़े में वो जाके कहता है कि प्री अफ्तारी से पहले इस पेशेंट की ब्लड शुगर 208 है। अब इमेजिन करें अगर अफ्तारी से पहले 208 है तो सहरी के 2 घंटे बाद कितनी होगी। अच्छा, तो ये उसकी हमने की थी इनिशियली कि हमने कहा सहरी पे 12 यूनिट कर दें। तो अब उसका हल ये होगा कि मैंने उसके थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि 16 यूनिट कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। उससे बिल्कुल आप सहरी के चेक भी कर सकते हैं आफ्टर अफ्तारी के, कहीं 400 तक तो नहीं जा रही उस पेशेंट की, तो आप उसकी ऑब्वियसली सहरी के बाद उसकी यूनिट्स बढ़ा दें। तो इस स्लाइड की पर्पज़ ये थी कि पेशेंट को ये फील ना हो कि जी डॉक्टर साहब ने अब कर दिया नुस्खा, कोई मैजिकल उन्होंने हाथ फेर दिया है तो अब मैं जो मर्ज़ी जाके घर जाके करूँ। ही नीड्स टू मॉनिटर, ही नीड्स टू कम्युनिकेट विद यू वन वे और अदर। बेशक आपके PA को मैसेज करके बताए और फिर मैसेज आप तक आ जाए, या वो डायरेक्ट आप मैसेज रिसीव कर लें, जो भी विच एवर वे इट वर्क्स फॉर योर प्रैक्टिस ना। ये तो हमने बात कर ली। हाँ, यूजली वो मैं बात ये करने लगा था जब पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज इस तरह मील से पहले मोर देन 200 आती है तो यूजली एटलीस्ट मोर देन 4 यूनिट्स वहाँ पे इंक्रीज़ करनी पड़ जाती हैं, सिर्फ 2 यूनिट से काम नहीं बनता। नेक्स्ट केस में जी 25 ईयर ओल्ड फीमेल, type 1 diabetic for 12 years, HbA1c is 8%, patient is on MDI, multiple daily injections of insulin, basal bolus पे हैं, ग्लार्जीन भी ये पेशेंट लेती हैं रात 10 बजे और फिर रेगुलर इंसुलिन 10 यूनिट्स बिफोर ईच मील। यूनिवर्सिटी में भी जाना होता है, पेशेंट की रेटिनोपैथी की भी हिस्ट्री है, तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ की आ रही हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ की फॉर 12 ईयर्स। तो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में ये पेशेंट कहाँ फॉल करेगा? ऑब्वियसली वेरी हाई रिस्क पेशेंट है ये पेशेंट ना, आपका कैटेगरी 1 जिसे हम कहते हैं, ये पेशेंट वहाँ पे फॉल कर रहा है। क्या करना है इसकी इंसुलिन का जी? अगर मैंने अपने फेलो के पास चले जाना है अपना, अगर किसी ने जवाब ना दिया तो हाँ, कमर तैयार हो जाओ आप जी। यानी वॉलंटियर्स अगर नहीं है तो डॉक्टर कमर को दे दें जी माइक। डॉक्टर कमर इज़ डूइंग एंडोक्राइन फेलोशिप विद मी, अभी इन्होंने स्टार्ट किया है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो अभी इनकी जो जवाब होगा वो मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि अभी इन्हें 2-4 हफ्ते महीना हुआ शुरू किए तो अभी मैंने इसे कोई 23 महीने और ट्रेन करना है जी हाँ। So this is high risk patient, तो जो लंच वाली डोज है सर, वी कैन मेक दिस लंच वाली, ठीक है। और सर मॉर्निंग वाली डोज पे हमारे लेवल्स डिपेंड्स करते हैं कि मॉर्निंग वाली डोज को 10 से 20% कम किया जा सकता है और इवनिंग वाली डोज जो है वो सेम है। अच्छा, इसकी लेट्स गो बैक HbA1c मैं दिखा दूंगा आपको, 8% थी इसकी HbA1c। हाँ जी, HbA1c सच इज नॉट कंट्रोल्ड, तो हम इसकी सर जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है सर, ओनली वंस डे को हम शाम को देते हैं सर, ठीक है। उसको हम सर 10% से 20% कम करेंगे और मॉर्निंग वाली डोज को 10 से 20% जी। कोई दूसरा इनपुट है उसमें तो कोई दूसरा इनपुट भी दे दें, आपने देना आप दे दें। जी हाँ जी जी। और लेंटस का क्या करना है? लेंटस आप कहते हैं उतनी जारी रखें। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर हाईलाइट करूं, क्योंकि
मैं उसी पे आने लगा ना, वही बात, मेरा अगला फिक्रा यही था। मेरे पास टाइप 2 का जो पेशेंट्स आता है ना और उसकी HbA1c 7% से ऊपर है तो इट जस्ट गिव मी जिटर्स ना, आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल कि भाई क्यों ज़्यादा है। लेकिन आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और आप लोग भी टाइप 1 को मैनेज करते हैं। टाइप 1 वाला पेशेंट मेरे पास जब 7.5 के साथ आता है ना, आई एम यूजुअली वेरी हैप्पी विद दैट पेशेंट। टाइप 1 इज़ अ वेरी ब्रिटल डायबिटीज़। टाइप 1 में ये होता है कि आप ऑब्वियसली यू नो कि दीज पेशेंट्स कैन हैव एक्सकर्शन फ्रॉम 40 to 400 यूनिट्स जस्ट विद 1 or 2 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। तो टाइप 1s आर वेरी ब्रिटल। तो टाइप 1 में जो मेरा कंट्रोल का स्टैंडर्ड है दैट्स वेरी डिफरेंट। और थिंक अबाउट दिस पेशेंट्स एज एज वेल। इस पेशेंट की एज क्या थी भला? डिड एनीवन? 25 years old। और यूनिवर्सिटी में भी इसने जाना है रोज़ों में। अब पाकिस्तान में तो यूनिवर्सिटियाँ जब गर्मियों में आते तो बंद होती थी, लेकिन अब ज़ाहिर बंद नहीं हुआ करेंगी। इस साल मुझे पता है कि मेडिकल कॉलेज में छुट्टियाँ जो हैं वो जून के एंड में हो रही हैं, तो इसलिए अब रोज़े तो कोई इसी दौरान। तो इस पेशेंट की सारा दिन एक्टिविटी भी है, टाइप 1 डायबिटिक है विच इज़ ब्रिटल। तो इन दिस केस मेरा पर्सनल मतलब अगेन लाइक आई वुड टेल यू दैट देयर इज़ नो रॉन्ग और राइट आंसर देयर। ये एक आपकी पर्सनल जजमेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप वो भी कर सकते हैं कि आप कहें जी ठीक है, क्योंकि अगर आप आइडियल बात करें बेसल बोलस रेजिमेंट की, बेसल बोलस में हम ये कहते हैं कि अगर पेशेंट ने खाना खाना है तो बोलस लेगा, और बेसल उसकी इतनी है कि अगर वो 24 घंटे भी खाना ना खाए तो उसकी शुगर लो नहीं होनी चाहिए अंडर आइडियल सर्कमस्टांसेस। तो मतलब देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग आंसर। इंपॉर्टेंट इज़ कि आप उसे मॉनिटर करें। मेरी अपनी फील ये है कि 88% HbA1c है, स्लाइटली ऑफ टारगेट है 7.5 के हिसाब से मैं कैलकुलेट करें। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, यंग लोग है, यंग लोग थोड़े से मतलब दे टेंड टू मेक थिंग्स, मतलब दे से कि लेट्स टफ इट आउट। वो इतना छोटी बात पे उनका रिएक्ट भी नहीं करते। तो यहाँ पे थोड़ा सा वुड लाइक टू गिव दिस पेशेंट अ लेवरेज। तो आई वुड से कि मॉर्निंग की भी शुरू में कम से कम आई वुड से कि मैं इसे कहूँगा कि डिसेंट कंट्रोल ऑफ टाइप 1, क्योंकि 8% है, 7.8 7.6 होता है, मैं कहता बहुत अच्छा है। तो आई विल at least to begin with, remember this is a patient कि जहाँ पे हमने कहा था ये वेरी हाई रिस्क पेशेंट है, इसे रोज़ा ही नहीं रखना चाहिए। अब रोज़ा वो रखने लगे तो फिर हम डंडा लेके खड़े हो जाएं कि नहीं जी, फिर हमें रोज़े में उसे लेवरेज थोड़ा सा देना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से मेरा अपना व्यू पॉइंट ये है कि इसको थोड़ी सी हमें सहरी के वक्त भी कम कर दें। और लेट्स सी के हाउ द ब्लड ग्लूकोज इज़ लाइक। वो पिछले पेशेंट में हमने किया कि 12वें रोज़े पे जाके डोज को बढ़ा दिया, इसमें भी चौथे 5वें रोज़े पे बढ़ा सकते हैं अगर टू मच मतलब ग्लूकोज रेज हो। और लेंटिस बेसल को भी थोड़ा सा कम कर लें और इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी हाई रिस्क पेशेंट। और in a relatively decent control type 1 diabetic, I would label it as it is. तो ये दिस इज़ द रूल आई व्हाट अप्लाइड इन दिस पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक्स में, जो कि डिसेंट कंट्रोल जिनको मैं कहूँगा हैं, उनमें आप रिड्यूस डोज बाय 30 to 40% ओवरऑल एंड टेक मोस्ट ऑफ द डोज एट अफ्तार टाइम, और नॉर्मल डोज अफ्तार रिड्यूस सहूर डोज बाय 25 to 50% इन दीज पेशेंट्स जी इन दीज पेशेंट्स। केस 5 पे आ जाए मेरा ख्याल, इसके बाद मैं आई विल स्टॉप क्योंकि आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट टू मच। 65-year-old मेल, टाइप 2 डायबिटिक फॉर 20 years, HbA1c 9% है इस पेशेंट की। मेडिकेशंस ग्लार्जिन 30 यूनिट्स बेड टाइम पे है, सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन विद ब्रेकफास्ट ये पेशेंट ले रहा है। फास्टिंग इसकी 180 रहती है, रैंडम 190 के आसपास, 200। कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है लेकिन स्टेबल है, कोई एंजाइना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एज सच सिम्टम्स नहीं है इस पेशेंट के। ऑब्वियसली हाई रिस्क के पेशेंट कैटेगरी में फॉल करता है। और इसकी मेडिकेशंस का क्या करना है जी, क्विकली बस सिर्फ हाईलाइट कर दूं जस्ट टू सेव सम टाइम कि इसकी मेडिकेशन इन दिस केस व्हाट आई वुड से कि इस पेशेंट का बड़ा अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि ये पेशेंट रिमेंबर व्हाट आई सेड कि फास्टिंग का खाने से तल्लुक ही नहीं होना चाहिए। अब इस पेशेंट की फास्टिंग 180 पे रहती है ऑल द टाइम इस पेशेंट की ना। तो अगर 180 पे फास्टिंग रहती है तो ये रोज़ा रखे या ना रखे, रोज़ा रख भी लेगा तब भी इसकी फास्टिंग 180 पे ही रहनी है। हाँ, पोस्ट प्रेंडियली इसमें फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि रोज़े में सारा दिन नहीं खाना, लेकिन फास्टिंग इसका वही सिलसिला रहना है। तो दिस इज़ अ पेशेंट के वेयर आई वुड से कि यार लेंटिस को थोड़ा सा आप इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि ये तकरीबन 9% के आसपास HbA1c या मे बी ये महीना उसके लिए बाबरकत महीना तो वैसे ही है, और ये इसके लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो जाए कि इसकी HbA1c इस महीने के दौरान कम से कम 7 point something के पास आ जाए। तो दैट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी कि थोड़ा सा हम लेंटिस को बढ़ा दें, फास्टिंग कंट्रोल में आ जाएगी। और बोलस के लिए हम बहुत ज़्यादा कर भी नहीं रहे, इसका सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन दिस पेशेंट दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट शुड गो। थोड़ा सा मैं आगे आ जाऊँ जी।
खैर ये हमने डिस्कस कर ली है विद द प्रेजेंटेशन। अच्छा चलें इसी पेशेंट का थोड़ा सा अगला 13वें रोज़े पे जाके इस पेशेंट की आपने वो कर तो दी, बड़ा ब्रेव सा डिसीजन ले लिया कि हाँ कर दें। अब ये हुआ कि इसकी 13वें रोज़े पे जाके प्री अफ्तार ब्लड ग्लूकोज 81 पे आ गई है इस पेशेंट की ना। तो रिमेंबर व्हाट आई सेड, देयर इज नथिंग लाइक अ परफेक्ट डिसीजन, ब्लैक एंड वाइट में ये डिसीजंस नहीं होते, ये आपकी जजमेंट कॉल्स होती हैं और के बेस्ड ऑन व्हाट पेशेंट टेल्स यू। मे बी पेशेंट गोज होम एंड स्टार्ट्स टू डू गेट्स मोर टाइम इन रमदान, वो थोड़ी सी मस्जिद में भी 5 दफ़ा जाना शुरू कर दिया, उसने तरावियाँ भी पढ़ना शुरू कर दी, उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ गई, सारा दिन वो खाना भी नहीं खाता। तो जो एट वन टाइम हम था वी थॉट के बेस्ड ऑन हिज लाइफ स्टाइल इसकी इंसुलिन बढ़नी चाहिए, अब उसका लाइफ स्टाइल बदल गया ऑल ऑफ ए सडन। अब वो 5 वक्त मस्जिद में भी जाना शुरू हो गया है और अफ्तार और 20 तरावियाँ पढ़ने के बाद तो मतलब अच्छा खासा एक फिज़िकल एक्सर्शन हो जाती है। तो इस पेशेंट की अब एक्सरसाइज के साथ इंसुलिन रिसेप्टर्स बॉडी में बेहतर हुए, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हुई। तो वो जो उस वक्त बड़ा वाइज सा डिसीजन हमने किया जी 40 यूनिट्स कर दें, इस पेशेंट की अब 81 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पे आ गई है जी। प्री अफ्तार क्या करना है जी इसका? अब लेकिन बड़ा टाइट मार्जिन कर दिया ना, आज 81 पे आ गई है, अगले रोजे में वो 71 पे, 10-15 यूनिट पॉइंट्स का फर्क तो नहीं पड़ता ना इतना। आपका पेशेंट आपको बता दें डॉक्टर साहब एक दिन तो मेरी 110 आती है, अगले दिन 130 भी आ जाती है, किसी दिन 90 भी आती है, तो थोड़ा सा उसे क्वेश्चन तो देना पड़ेगा ना। तो इस हाँ जी, तो उसका हल ही है कि उसकी जो हम इंसुलिन की बात कर रहे हैं उसकी थोड़ी सी इंसुलिन को कम कर दिया जाए। उसमें आप ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी बात सही है कि लो में तो नहीं गया ना। मैं शायद थोड़ा सा मैंने मतलब थोड़ी सी कम ज़रूर करें, 26 कर लें। पर्सनली मे बी आई माइट हैव गॉन टू 24 एज वेल इन अ रियल टाइम सिनेरियो। पर्पस इस स्लाइड का ये था कि भाई आपका पेशेंट जो उसका लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग बिफोर रमदान था, रमदान के साथ उसका लाइफ स्टाइल बदल सकता है बेस्ड ऑन कि अब उसके पास टाइम भी, वही जो मैंने बातें पहले कही हैं। तो इसलिए ये मॉनिटरिंग रखने की ज़रूरत है और उसकी बेसिस पे डिसीजन करना है। तो इस पेशेंट में ऑब्वियसली आप उसकी ग्लार्जिन को थोड़ा सा कम कर दें, 24 कर दें। अगर आप 26 करना चाहते हैं वो करके 2 दिन देख लें, चेक करके क्या सिलसिला रहता है। तो दिस इज़ अ डायनामिक थिंग, इसमें कोई एज सच नहीं है कि वन टाइम प्रोसेस नहीं है जिससे आप वन टाइम प्रोसेस करके तो आपके जी मुकम्मल हो गया एंड आई डोंट नीड टू डू एनी थिंग फर्दर और चुप करके रोज़े रखो आप ना। 28वें रोज़े पे क्या होगा जी? हमने 26 कर दिया, हमने कहा ठीक है गुड इनफ। तो वो जो फराज साहब हैं उन्होंने अपनी एफर्ट जारी रखी, उसी विगर उसी एनर्जी के साथ तरावियाँ भी पढ़ी। अब उन्हें ऑफिस से भी जल्दी छुट्टी मिल जाती थी, शाम को आके वो लॉन में भी बैठ जाते थे, बच्चों के साथ भी थोड़ी बहुत वॉक राउंड कर ली। अब उनकी शुगर फर्दर ड्रॉप करना शुरू हो गई, अब 4 बजे ड्रॉप कर गई है जी, 62 पे चली गई है उनकी उस पेशेंट की। पहले तो उस दिन उसका रोज़ा तड़वाएँ जी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये नहीं है कि 62 पे चले जाए और आप कहें जी नहीं जी बड़ा पेशेंट नीड्स बी एजुकेटेड कि आप रोज़ा बिल्कुल अंडर मेडिकल कंडीशन तोड़ सकते हैं, उसमें एज सच कोई मतलब सिलसिला नहीं। दिस इज़ अल्लाह ताला ने इस चीज़ की इजाज़त दी है तो वाई नॉट। तो पहले तो रोज़ा तड़वाएँ, उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है जी कि हाँ चलें इस पर ज़ाहिर उसकी इंसुलिन कम करेंगे। नाउ क्वेश्चन टू द ऑडियंस इज़ कि रोज़ा मरीज़ का कब तड़वाना है, कब उसे कहना है कि जी भी आप रोज़ा तोड़ लो और पहले इस चीज़ को मैनेज कर लो। अगर उसकी ब्लड ग्लूकोज लेस दैन 70 है तो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि रोज़ा तड़वा दिया जाए। ब्लड ग्लूकोज मोर देन 300 है, सिम्टम्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज ऑफ मोर देन 300 हैं, आइडियली आई वुड से कि रोज़ा तड़वा देना चाहिए। लेकिन मेरे अपने भी मरीज़ गई है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब 300 तो मेरी अक्सर ही रहती है, तो क्यों मेरा रोज़ा ख़राब करते हो ना। तो आइडियली आई वुड वांट कि वो तोड़ दे और उसमें मतलब अपने आप को इंसुलिन लगाए, ब्लड ग्लूकोज को नीचे लेके आए। लेकिन हमारी पॉपुलेशन थोड़ी सी रेजिलिएंट भी है, थोड़ी सी मतलब अपनी मर्जी भी करती है। तो बाज़ मेरे पेशेंट मुझे यही रिस्पॉन्ड करते हैं कि डॉक्टर साहब 300 छो जी, मेरी तो अक्सर ही 300 रहती है, तो रोज़े के अलावा भी। तो आइडियली आई वुड वांट कि भाई 300 से ऊपर ना वो जाए और करे। तो इसलिए दैट्स वाई वी नीड टू मेक अ सीरियस अटैम्प्ट कि वो इस चीज़ को कंसिडरेशन में रखें। अगर सिम्टम्स ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, डिहाइड्रेशन, एक्यूट इलनेस हो गई है तो ऑब्वियसली वो रोज़ा भी आपने तोड़ना ही है। तो मैं वही देख रहा था कि आप रोज़ा टूटने की देखें तो उसमें बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मतलब इंसान लर्न करता है कि मुंह भर के आपको उल्टी आ जाए तो उससे भी टूट जाता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को लेवरेज दी कि मे बी यू गॉट सो मच सिक कि ये नहीं कि इसमें खुदा न खासा प्लीदगी आ गई थी कि आपको उल्टी आ गई, लेकिन अल्लाह ताला को अंदाज़ा है कि अगर मरीज़ इतना सिक हो गया है तो उसमें जी बताएँ।
रोज़ा तोड़, हाँ देखें हाइपरग्लाइसीमिया में आइडियली उसमें प्रॉब्लम ये आएगा कि अक्रॉस द बोर्ड अगर तो आपका टाइप 1 वाला जो पेशेंट है, चलिए टाइप 1 की हम बात कर लें, अगर वो 300 चेक करता है फिर करता है और उसके बाद वी डोंट नो कि विच वे दैट पेशेंट इज़ गोइंग टू गो, वो पेशेंट में भी अगले 4-6 आवर्स में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में चला जाए, नंबर 1, तो उस पेशेंट का तो फॉर श्योर हमने करना ही करना है। अब दूसरा पेशेंट आपका टाइप 2 डायबिटिक का आ जाता है। अब टाइप 2 डायबिटिक वाला पेशेंट जो 300 पे आ रहा है, उसमें लाइक मोस्ट ऑफ द पेशेंट से कि डॉक्टर साहब ये वैसे भी हो जाती है, ये तो आइडियल सर्कमस्टांसेस, लेकिन आई टेल दोज पेशेंट कि ठीक है आपकी 300 आ गई, 310 आ गई, आपसे चेक कर लें, घंटे बाद कर लें, 2 घंटे बाद कर लें, ड्रॉप कर जाती है चलें कोई मसला नहीं है, आप कंटिन्यू रखें, ड्रॉप करती जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 300 से ऊपर जाती है और 2 घंटे बाद वो चेक करता है 350 पे जाती है, वो कहते हैं मैं घंटा और रोक लूँ, 380 पे जाती है, तो वी डोंट नो कि ये पेशेंट HHS में ना जा रहा हो, हाइपरोस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट में ना जा रहा हो, तो दैट्स वाई ग्लूकोज का ट्रेंड तो अपवर्ड जा रहा है ना उस पेशेंट में मुसलसल, तो ये है। लेकिन जो मेरे पेशेंट ये बात करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी 300 वैसी रहती है, मैं कोई बात नहीं, आपकी 300 आए ना तोड़े आप रोज़ा, आप घंटे बाद चेक कर लें, देखें ट्रेंड क्या है, उसके 1 घंटे बाद फिर कर लें, अगर तो अपवर्ड ट्रेंड है तो देन इट शुड बी ब्रोकन ना। नहीं वो देखें, वो तो अब पहले उसका रोज़ा तो तोड़वाए ना, उसके बाद इमरजेंसी की विजिट और बाकी चीज़ें तो अपने एंड पे बिल्कुल नहीं, उसका पॉइंट ये है कि अगर वो नॉर्मल है ना, तो अगर आपने इंसुलिन उसे इंजेक्ट करनी है तो उसका रोज़ा तो तभी, पॉइंट क्या है यहाँ पे, पॉइंट ये है कि वो पेशेंट इंसुलिन डेफिशिएंट है एट दैट पॉइंट। ये नहीं है कि हमने कहा हो ये कट ऑफ आ गया, रोज़ा तोड़ो और बैठो और खाओ, हमने खाना तो नहीं उसे देना ना, हमने कहना है कि अब इंसुलिन लगाओ, तो इंसुलिन लगाने से उसका रोज़ा वैसे ही टूट जाना है, ऐसा ही है, नहीं टूटता। अच्छा चलें ठीक है, अच्छा ओरल, अच्छा अगर आप ओरल है ठीक है, चलें वो तो एक रिलीजियस मसला आ गया, लेकिन पॉइंट उसमें ये है कि अगर उसकी ग्लूकोज अपवर्ड जा रही है तो मे बी हमें, अच्छा ये बताएं अगर उसे मैं IV हाइड्रेशन देनी पड़ती है तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं IV हाइड्रेशन से? हाँ जी, आप कहती हैं कि IV से सऊदी अरब में नहीं टूटता, लेकिन पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है इसके ऊपर ना। पाकिस्तान में तो अब शुक्र है अल्लाह का कि अब लोगों ने आखिर अल्लाह अल्लाह करके वो जो ग्लाकोमा के पेशेंट थे उन्होंने वो आई ड्रॉप्स डालना शुरू करें किए हैं, वरना यहाँ पे तो लोग आई ड्रॉप्स भी नहीं डाला करते थे। तो बहरहाल ये एक रिलीजियस चीज़ है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पे मैं आपको बता दूँ कि अगर उसकी ग्लूकोज ऊपर है और ऊपर जाती जा रही है तो दैट पेशेंट्स नीड्स टू बी मैनेज्ड फॉर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। अगर आप उसकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोज मॉनिटर करते रहते हैं, उसे आप हाइड्रेट करते हैं, इंसुलिन देते हैं, मरीज़ कहते हैं मेरा रोज़ा है तो ठीक है, वो कहते हैं ना एनजी तो एनजी सही, फिर रोज़ा है तो फिर रोज़ा ही है, ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन ये है कि उसकी ग्लूकोज नीड्स टू बी मॉनिटर्ड ना। चलें जी, मेरा ख्याल है कि हम ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ माई स्लाइड, ये तो मैंने पहले बता दी थी। हाँ, पोस्ट रमज़ान ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने वाला है कि रोज़ों में बड़ी एहतियात होगी। रोज़ों के बाद जनाब 3 दिन का फेस्टिवल होता है, वो सवैयों से शुरू होती है ईद उल फितर, और बस आप यू नेम डिश तो वहाँ पे आ जाती है, वो जो नमकीन भी है और जो मीठी भी है वो सारी चीज़ आ जाती है। तो यू नीड टू एडवाइज़ योर पेशेंट कि भाई पोस्ट रमज़ान डू नॉट इंडल्ज योर सेल्फ अननेसेसरीली इनटू अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस। एक ये बात, दूसरा एक और मैं मैसेज अपने पेशेंट्स को देता हूँ कि रमज़ान आ गया है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू लूज़ वेट। सहरी में आप खाते हैं, चलें सारा दिन आप मतलब फास्टिंग करते हैं, तो अफ्तारी पे के पास जाके बस मेज़ पे हमला नहीं करना। अफ्तारी पे जाके आप कोशिश करें उतना ही खाना खाएं जितना आम तौर पे आप बिफोर रमज़ान आप खाया करते थे अपने डिनर के लिए। तो दैट इज़ ए गुड टाइम टू लूज़ वेट ऑल्सो। रोज़ों में एक्सरसाइज वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि जो लोग मस्जिद में नहीं भी जाते रोज़ों के अलावा, वो तब भी 1 या 2 दफ़ा ज़रूर मस्जिद में जाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और मूवमेंट भी बेहतर हो जाती है। विद दिस आई विल थैंक यू ऑल वेरी मच।